Last class, we had started off with what is the meaning of resources, then how we classify the resources on different bases, like on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of development. Then, what will happen if we are overusing or exploiting these resources? Then, how there was an Earth Summit which had agreed on Agenda 21. What is the meaning of resource planning? How we divide the resource on different, क्योंकि अब जो हम लोग next few chapters अपने geography में पढ़ेंगे ना, दो that will be water resource, agriculture, minerals, manufacturing, यानी कि ये जो resources हम लोगों को ज़मीन से मिलते हैं इनको हम लोगों ने अलग अलग chapters की तरह पढ़ना है, right? तो on a broader ground we had studied about land, and I had also started with soil. Then I told you that you will be having the kinds of soil. आपका जो है soil के kinds होंगे and where they are found. What are their important components? Like अगर हम alluvial soil कहते हैं तो alluvial soil is the best soil for any agriculture. जितना आपका ग्रीन बेल्ट है, दैट इज आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिस इज ऑल कवर्ड विथ अलूवियल सॉइल बिकॉज दे आर ऑल लोकेटेड नियर द गैंजेस प्लेन, रिवर के पास में है इसीलिए. देन रेड एंड येलो सॉइल विच इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर छोटा नागपुर. ब्लैक सॉइल, द वॉल्केनिक इरप्टेड सॉइल, महाराष्ट्र गुजरात बेल्ट. Desert or arid soil, Rajasthan and part of Gujarat. Laterite soil, Tamil Nadu. Then आपका Kerala, the coastal area. Montane or forest soil, more or less the forest areas of our country. Then इसी में हमारा last, we also had how is soil जो है वो इरोड कैसे होता है. हमारा जो नेक्स्ट है, देर आर टू वेज. एक आपका होता है एयर और विंड हम बोलते हैं, एंड दूसरा आपका होता है वाटर. सो दीज आर द टू मेन एलिमेंट्स जिसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन रहता है, यानी कि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो बह जाता है, एंड दैट इज द वन विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स. एंड अगर वो हमारा चला जाता है तो व्हाट विल हैपन इज वहां पर या उस मिट्टी में टू ग्रो क्रॉप्स इज डिफिकल्ट. एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इरोजन्स, लाइक वी हैव द शीट इरोजन, देन वी हैव द गली इरोजन. और ये जो गली इरोजन वाला मैं बता रही हूँ ना, दिस इज आई कैन बेट अपॉन कि नो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें गली इरोजन नहीं आता है. गली इरोजन होता है जब तेज बारिश हो रही है एंड मिट्टी जो है उस पर तेज जब पानी गिरता है, इवन हम अपने घरों में भी करेंगे ना तो वो गड्ढा डाल देता है. इट वुड क्रिएट द शैलो होल एंड दैट एरिया और द सॉइल बिकम्स अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग कहते हैं बैड लैंड्स, और इन चंबल घाटी उसको हम रेवाइंस भी कहते हैं. वन ऑफ द क्वेश्चन विच कम्स इन 3 मार्क्स. सो वी हैव शीट इरोशन, कंप्लीट शीट आपकी हट जाना, देन गली इरोशन, एंड देन द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मेजर्स टू कर्ब soil erosion. This question comes for 5 marks. ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 5 मार्क्स में आता है, एंड इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको आगे करवाया था,
I had told you 1 or 2 questions which are important. Then map तो आएगा ही आएगा, 100% map is there from this first term में. map इसमें से आएगा आपकी geography में, इसमें से आएगा ही आएगा. इसमें आएगा आपका identify करना. आपको भरने के लिए नहीं बोला जाएगा. You will be given the area and you have to identify the kind of soil, the type of soil. ठीक है. Now measures में we will be having the what we call as shelter belt, then contour plowing, then terrace farming, and afforestation, यानी कि growing of more forest. So this is the entire chapter about which we are going to start today with the NCERT. Right? If you have gone through this, जो मैंने आपको कल और आज बताया है, and if you go through the chapter along with the NCERT, you are more than enough. The only thing is you need to understand कि हाँ मैम ने हमें बताया है कि what are the kinds of questions we may have. That if you know, then you are thorough with this. Means soil erosion, what is soil erosion, kinds of soil erosion, and measures to curb soil erosion. Then this may come as write a short note on, या इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है जहां आपका कॉटन ग्रो करता है उसको कौन सा क्रॉप मतलब कौन सा कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इज अ मैप क्वेश्चन, सो यू नीड टू कंसंट्रेट मोर ऑन द मैप्स. देन इट कम्स रिसोर्स प्लानिंग आता है, बहुत कम आया है बट एक आध बार आया है, 3 स्टेप्स. देन एजेंडा 21, व्हाट इज दैट? इट वाज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. देन ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डिफाइन क्लासिफाई द रिसोर्सेस, ये आपका कई बार आया हुआ. सो दिस इज हाउ द चैप्टर विल गो. नाउ आई एम स्टार्टिंग इट विद द NCERT. ओके, I hope all of you have got the book with you, and kindly mark wherever you feel that yes it's important, kindly you can mark it, right? As we had started off this chapter day before yesterday and I told you anything resource का मतलब क्या होता है, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये पेन है. Now this pen can be used for different purposes. एक पर्पस हम एक अच्छे बच्चे की तरह बोलते हैं मैम लिखने के लिए, बट यस वी ऑल्सो प्ले पेन फाइटर विद दिस. आई हैव सीन स्टूडेंट्स प्लेइंग पेन फाइटर मोर देन राइटिंग. उनका वो पेन फाइटर पीछे से या फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए है ना. सो एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस, उसको चबा चबा के खा ही जाते हैं, बेचारे भूखे होते हैं. तो सो दैट मीन्स एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट which is useful, which can be technologically हम उसको जो है accessible, यानी कि देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसे होती हैं जहां पर आपको कहा जाएगा वहां पेट्रोलियम मिला है, बट यू कैन नॉट यूज पेट्रोलियम और एनीथिंग अगर वो कम मात्रा में है, इफ इट इज इन अ लेसर क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी क्या हम उसको टेक्नोलॉजिकली निकाल सकते हैं, हम उसको टर्न कर सकते हैं. Is it possible within the given money, economically feasible? यहाँ लिखा हुआ है economically feasible, यानी कि money wise cost factor में is it okay and culturally acceptable? Like in our country many things are not accepted. मतलब we live in a country where we call ourselves as secular, but बहुत सारी चीज़ों में हम अपने आप को जो है हम कहते हैं ये हमारे sentiments को नहीं करता है. So we have to accept that. That's resource. And as I said that we all are dependent on the resources. We interact with the nature, यानी कि हमारे पास हमें जो we get the oil, we get the minerals, तो we interact with the nature through technology. हम create institutions का मतलब होता है कौन उस को यूज करने के लिए हमें सिखा सकता है, उसको निकाल सकता है. लाइक कोल जो है, कोल इंडिया जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल. जो स्टील है हमारे यहाँ पर बनता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनका जो स्टील बनता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाता है.
सो वी हैव स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो इन चीज़ों को डील करते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पास ये नहीं होंगे तो वी मे नॉट बी सर्वाइविंग. ये मैंने आपको उस दिन बताया था दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट ऑन द वेरी लार्ज स्केल, नेचुरल एंड ह्यूमन. वाटर है, एनिमल्स हैं, फ्लोरा, फौना, wind, water, everything which is available in the environment is natural. Whereas which we have made, हमारे घर में जो हमने जो कार बनाई है, जो ह्यूमंस ने कंप्यूटर्स बनाए हैं, जो ह्यूमंस ने आपके चेयर बनाया है या बिल्डिंग्स बनाई हैं, दे आर ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. देन दिस इज द वन विच आई हैड एक्सप्लेन टू यू. एक एक करके हम लोग